کہانی کی شروعات میں جنگل کے اندر ہمیں ایک لڑکی کو دکھایا جاتا ہے جو کسی سے ڈر کر بھاگ رہی ہے۔ اس کا پورا جسم خون سے لت پت تھا۔ جنگل کے اندر ایک وچ چڑیل کو بھی دکھایا جاتا ہے جو اس لڑکی کے گلے کو پکڑ کر ہوا میں اٹھا لیتی ہے۔ ٹھیک اسی وقت اولینا نام کی ایک لڑکی کی آنکھ کھل گئی جو ہی کہانی کی مین کیریکٹر ہے۔ جنگل میں جو لڑکی ہم نے دیکھی وہ اولینا ہی تھی۔ یہ بس وہ برا سپنا دیکھ رہی ہے۔ یہیں پر ہمیں اولینا کا ہسبینڈ بھی دکھایا جاتا ہے۔ دونوں ایک دوسرے سے بہت پیار کرتے ہیں اور ساتھ میں بہت خوش تھے۔ اولینا کا ہسبینڈ جب نہانے کے لیے گیا تب اولینا اپنے ایک دوست کو کال کرتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ سب کچھ بہت اچھا چل رہا ہے، میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ بہت خوش ہوں اور اب میں اپنی آگے کی زندگی اس کے ساتھ ہی گزارنا چاہتی ہوں۔ رات کے وقت جب اولینا کا ہسبینڈ کام سے واپس لوٹ کر آتا ہے تب یہ دونوں بہت اچھا ٹائم ساتھ گزارتے۔ اس دوران ٹی وی پر ایک نیوز چل رہی تھی۔ بتایا جاتا ہے کہ رشیا نے کئی ملکوں پر حملہ بول دیا ہے۔ رشیا کے فوجیوں نے حملہ کرنے کے بعد لوگوں کا جینا مشکل کر دیا ہے۔ بڑے بڑے ملک بھی رشیا کے سامنے گھٹنے ٹیک چکے۔ فوجی لوگوں کے گھروں میں گھس کر انہیں کافی زیادہ ٹارچر کر رہے ہیں، ظلم کرتے ہیں، مارتے پیٹتے ہیں۔ اولینا کا ہسبینڈ جہاں رہتا تھا وہاں پر بھی رشین فوجی آ چکے، اسی لیے وہ اپنی وائف کو چپکے سے لے کر یہاں سے کہیں دور جا رہا تھا۔ یہ لوگ سیدھے راستے نہیں جاتے بلکہ جنگل والے راستے سے جانے کا فیصلہ کرتے ہیں کیونکہ وہ والا راستہ شارٹ کٹ تھا، لیکن انہیں نہیں پتا تھا کہ جنگل میں جانے کے بعد ان کا سامنا روسی فوجیوں سے ہو جائے گا۔ یہ روسی فوجی جنگل میں ڈیرا ڈال کے بیٹھے ہوئے تھے۔ روسی فوجیوں کا جو لیڈر تھا روبرٹو، وہ ان کی کار کو روک دیتا ہے۔ اس کے جو لوگ تھے وہ اولینا کے ساتھ بدتمیزی کرنے لگتے۔ فوجی اپنے لیڈر روبرٹو سے کہتے ہیں کہ ان کی گاڑی کافی اچھی ہے، اگر ان کی گاڑی ہمیں مل جائے تو گاؤں میں جا کر سامان لانے میں آسانی ہو جائے گی، ہم انہیں مار کر پھینک دیتے ہیں اور ویسے بھی یہ تو چلتا ہی رہتا ہے، ہمارے لیے کون سی بڑی بات ہے۔ روبرٹو بھی ان کی بات مان لیتا ہے، جس کے بعد کچھ فوجی جا کر اولینا کے ہسبینڈ کو گن دکھاتے ہیں اور کار سے اترنے کا کہتے ہیں، لیکن اسی وقت اولینا کا ہسبینڈ ان پر حملہ کر دیتا ہے۔ گاڑی سے سب کو ٹھوکتا ہوا وہ آگے بڑھتا گیا اور یہاں سے بھاگنے لگتا ہے۔ اس بیچ سبھی روسی فوجی ان کی گاڑی پر لگاتار فائرنگ کرتے ہیں اور وہ لوگ بڑی مشکل سے یہاں سے نکل پاتے ہیں۔ ان کا ایک فوجی جو گاڑی کے سامنے آ گیا تھا وہ گاڑی سے کچل کر مارا جاتا ہے۔ رات ہو جانے کی وجہ سے وہ لوگ آگے نہیں جاتی اور اولینا اپنی دوست کے گھر آ جاتی۔ یہاں آنے کے بعد اولینا کو پتا چلتا ہے کہ اس کے ہسبینڈ کو گولی لگی ہے، جس وجہ سے وہ کافی زیادہ زخمی حالت میں تھا، اسی لیے وہ نیچے گر جاتا ہے۔ خون بہت زیادہ بہہ گیا تھا، اس لیے اس بیچارے کی کچھ ٹائم کے بعد ہی موت ہو جاتی ہے۔ اولینا کنٹرول سے باہر ہو جاتی ہے، پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس سے یہ صدمہ برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ اپنی طاقتوں سے وہ اسے زندہ کرنے کی کوشش کرتی ہے لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوتا اور اب اسے کھو دینے کی وجہ سے وہ غصے سے آگ بگولا ہو جاتی ہے۔ وہ اپنے ہسبینڈ کی لاش کو اندر لے کر جاتی ہے اور اسے اچھے سے صاف کرتی ہے۔ وہ یہ وعدہ بھی کرتی ہے کہ جب تک وہ بدلہ نہیں لے لے گی تب تک وہ اپنے ہسبینڈ کی لاش کو نہیں جلائے۔ اس کی دوست کہتی ہے کہ ایسا کرنا ٹھیک نہیں ہوگا، تم نے یہ سب کچھ چھوڑ دیا تھا۔ اولینا کہتی ہے کہ میں نے یہ سب کچھ اپنے ہسبینڈ کے لیے ہی چھوڑا تھا لیکن ان لوگوں نے اسے مار دیا ہے اور اب کیونکہ وہ نہیں رہا تو میں بھی چین سے نہیں بیٹھوں۔ اس کے بعد اولینا ایک خفیہ دروازہ توڑتی ہے اور اس کے اندر چلی جاتی۔ یہ ایک کیو یعنی غار تھی اور یہاں پر ایک چھوٹا سا گھر بنا ہوا تھا، آس پاس بہت ساری موم بتیاں بھی جل رہی۔ اس کی کلائی پر پٹی جیسا کچھ بندھا ہوا تھا جو شاید اسے روکنے کے لیے تھا، جس کو وہ چاقو سے کاٹ دیتی ہے۔ ایسا کرنے کی وجہ سے اس کی جو طاقتیں تھیں وہ پھر سے واپس آ جاتی ہیں اور وہ بن جاتی ہے ایک وچ۔ اب پہلے بھی وہ وچ ہی تھی لیکن ہسبینڈ کی خاطر اس نے سب کچھ چھوڑ دیا تھا۔ دوسری طرف ہمیں جنگل میں روبرٹو کو دکھایا جاتا ہے۔ صبح ہو جانے کے بعد وہ اپنے لوگوں سے کہتا ہے کہ گاؤں میں جاؤ اور جو ملے اسے اٹھا لاؤ۔ اس کے کہنے پر سبھی لوگ تیار ہوئے اور اپنے وین لے کر گاؤں کی طرف چلے جاتے ہیں۔ ان کے ہاتھوں میں ہتھیار ہونے کی وجہ سے انہیں کسی چیز کا کوئی ڈر نہیں تھا۔ گھر کے اندر گھس جاتے ہیں اور لوگوں کو پیٹ کر ان کا سامان لوٹ لیتے ہیں۔ آج کے دن یہ لوگ جس گھر میں گئے اس میں ایک لڑکی، یہ لوگ اس لڑکی کے ساتھ بدتمیزی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ گھر کا سامان لوٹنے کے بعد اس بیچاری کے ساتھ بہت غلط کرتے ہیں اور وہ بہت روتی ہے۔ باہر کچھ روسی فوجی بیٹھے ہوئے تھے، اپنے ساتھیوں کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ تبھی یہاں پر سائیکل لے کر ایک عورت آ جو ان فوجیوں کے بارے میں الٹا سیدھا بولنے لگتی ہے، جس کی وجہ سے ہی ایک فوجی غصے میں آ کر عورت کے سر پر گولی مارتا ہے اور اس بیچارے کی بھی موقع پر ہی موت ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد یہ سبھی فوجی سارے گھروں میں سے سامان لوٹنے کے بعد جنگل میں واپس آ جاتے ہیں۔ یہ لوگ اپنے ساتھ اس لڑکی کو بھی لے کر آئے صرف اس لیے
कि जब चाहे उस बेचारी के साथ गलत करे। इसके बाद सीन बदलता है और हमें ओलिना को दिखाया जाता है। वो बाहर उनकी गाड़ी के पास जाकर गाड़ी पर लगे खून की सैंपल को ले लेती है। ये खून उस फौजी का था जो गाड़ी के सामने आया था। अब एक की तो कुचलने की वजह से मौत हुई थी और दूसरा ये वाला फौजी जिंदा था। ओलिना उस खून को लेने के बाद उस पर एक रिचुअल जादू करती है, जिसकी वजह से उस फौजी की हालत खराब होना शुरू हो जाती है। उसके मुंह से इंसानी लंबे से बाल बाहर निकलते हैं, जिससे सब और वो खुद काफी घबरा जाते हैं। उसके मुंह से एक खत भी बाहर निकलता है जिसमें लिखा हुआ था कि जंगल तुम्हारा कब्रिस्तान बनेगा। इसके कुछ ही टाइम बाद फौजी के पूरे जिस्म से खून निकलने लगता है, आँख, नाक, मुंह, कान सबसे, जिससे उसकी हालत इतनी ज्यादा खराब हो जाती है कि उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। बाकी फौजी उसे ले जाकर जमीन में गाड़ देते हैं, लेकिन इस हादसे से ये लोग काफी डर जाते हैं। इसी वजह से जिस लड़की को बंदी बनाकर ये लोग अपने साथ ले गए थे, उस लड़की को वापस लाकर ये लोग जंगल में छोड़ देते हैं, क्योंकि फौजियों को लगा कि ऐसा करने से सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो लड़की उठी और जैसे तैसे करके घर की तरफ जाने लगती है। उसी वक्त सामने एक कार आकर रुकती है। इस कार में कोई और नहीं बल्कि ओलिना। वो लड़की से कहती है कि अगर बदला लेना चाहती हो तो मेरे साथ मिल जाओ। जिसके बाद हमें जंगल में एक फौजी को दिखाया जाता है जो कि टॉयलेट कर रहा था, लेकिन कुछ वक्त के बाद उसे एहसास हुआ कि मेरे जिस्म से खून निकल रहा है, जिससे वो बेहद घबरा गया। अब जाहिर है इसके पीछे भी ओलिना का हाथ था। अब इन्हीं में से एक सोल्जर अपनी फैमिली के पास जाना चाहता था। वो फैमिली की तस्वीर को देखकर उन्हें बहुत याद कर रहा होता है, लेकिन उसकी मजबूरी थी, वो अपनी टीम को छोड़कर नहीं जा सकता था। अब थोड़ा टाइम गुजरने के बाद जब वो फौजी सो गया तो ओलिना उसे मारने के लिए उसके बहुत करीब आ जाती है, लेकिन इससे पहले वो उसे मारती वो उसकी फैमिली की तस्वीर को देख ली और सिर्फ तस्वीर को ही लेकर यहाँ से चली जाती। वो फिर दूसरे किसी फौजी को अपना शिकार बनाने के लिए आगे बढ़ी और जैसे एक फौजी देखा उसे मारने के लिए वो उसके सामने बहुत सारे पैसे फेंक देती। वो फौजी पैसे में इतना अंधा हो जाता है कि वो ओलिना का पीछा करने लगता है। अब अगले दिन सुबह पता चलता है कि ओलिना ने उस फौजी के साथ किया। दरअसल ओलिना ने उस फौजी को ले जाकर एक पेड़ से बांध दिया था। उसका बहुत बुरा हाल था, खून निकल रहा था और जिस्म पर कपड़े नहीं थे, ठंड से वो कांप रहा होता है। ओलिना ने उस फौजी के ऊपर भी रिचुअल किया और सभी फौजियों के सामने उनके ही आदमी को जान से मार देती है, वो भी बॉम्ब की तरह फाड़ कर, जिससे उसके जिस्म के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। अब इतना सब हो जाने के बाद भी रोबर्टो अपने लोगों से कहता है कि ये सब कुछ हमारे दुश्मनों की चाल है, उन्होंने यहाँ पर बॉम्ब्स भी बिछाए हुए हैं और हमारे इतने सारे लोगों को भी उन्होंने ही मारा। दूसरी तरफ ओलिना उस सोल्जर की फैमिली पर भी रिचुअल कर रही थी। उसकी दोस्त आकर कहती है कि मुझे पता है तुम्हें बहुत तकलीफ है, लेकिन तुम बेकसूर लोगों को मारकर बहुत गलत कर रही हो। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि तुम बेकसूर लोगों को मत मारो, भले ही अपना बदला लो। लेकिन ओलिना उसकी बात नहीं सुनी। जैसे ही सोल्जर की फैमिली पर किया गया रिचुअल पूरा हुआ, उसकी फैमिली खत्म होना शुरू हो जाती। सोल्जर की फैमिली की लाशों की एक तस्वीर उसके पास आ गई। तस्वीर देखकर वो अपनी बीवी को कॉल भी कर रहा था, इस उम्मीद में कि शायद वो जिंदा हो, लेकिन वो भी कॉल नहीं उठा। वो सोल्जर जाकर ये सारी बात अपने लीडर को बताता है। रोबर्टो से कहता है कि मैं अपनी फैमिली के पास जाना चाहता हूँ, लेकिन रोबर्टो साफ साफ इनकार कर देता है। वो कहता है कि तुम नहीं जा सकते, हमें जंग लड़नी है। और अब कुछ देर बाद उस सोल्जर के पास और भी ढेर सारी तस्वीरें आने लगती है जो उसके बीवी और बच्चों की थी। उन्हें देखकर सोल्जर बहुत डर जाता है और दुखी होकर रोने लगा। यहाँ से भाग निकलने का फैसला करता है। वो जाकर वैन में बैठा और उसे लेकर यहाँ से निकलने लगता है, लेकिन तभी उस सोल्जर के सामने ओलिना आ जाती है जो उसे डराने लगी। डर की वजह से वो बेचारा कांपने लगा और बिना सोचे वैन को लेकर काफी स्पीड से पीछे की तरफ जाने लगता है। उसकी इस गलती की वजह से कुछ सोल्जर्स कुचल कर मारे जाते हैं, जिस वजह से बाकी के सोल्जर्स को इतना गुस्सा आया कि वो लोग उसे बांध कर बहुत फेंक गए। जो सोल्जर्स मारे गए उनकी लाशों को ये लोग दफना देते, लेकिन उसी वक्त अचानक से इनके चारों तरफ बॉम्ब फटना शुरू हो जाता। जाहिर है ये काम भी ओलिना का ही था, लेकिन बॉम्ब को फटते देख सभी सोल्जर्स अलग अलग हो जाते। इस बीच एक सोल्जर को उस औरत की साइकिल दिखाई देती है जिसे उसने गोली से मारा था। ये किसी वक्त उसके पीछे उस औरत की आत्मा भी आ जाती है जो बहुत डरावनी लग रही थी। उसे देख सोल्जर काफी डर गया और वहाँ से भागने लगता है, लेकिन हड़बड़ी में वो
नीचे गिर जाता है। तभी उसके पास उसका लीडर आया जो उसके साथ बहुत अजीब बर्ताव करने लगता है, लेकिन पता चला कि वो उसका लीडर नहीं था बल्कि वही औरत थी जिसको उसने गोली से मारा था। उसकी आंखों में खून उतर आया था और वो बहुत ही बुरे तरीके से फौजी को मार कर उसके दिल को बाहर निकाल लेती है और अपना बदला पूरा कर लेती है, जिस दिल को बाद में ओलिना खाने लगी। ऐसा करके उसे बहुत सुकून मिलता है क्योंकि धीरे धीरे उसका बदला पूरा हो रहा था। वो सभी फौजियों की जान जो ले रही। उसकी दोस्त ऐसा करने के लिए भी उसे मना करती है, लेकिन वो उस पर गुस्सा करने लगती है। सभी सोल्जर्स को पता चलता है कि दफन की हुई सभी लाशों को किसी ने बाहर निकाल दिया है। इन्हें यकीन हो गया था कि ये काम उसी का हो सकता है जो हम सबको मार रही। सारे फौजी वैन को लेने के बाद जब दोबारा गांव की तरफ जा रहे थे, इन्हीं पेड़ों पर बहुत दिल दहला देने वाली चीज नजर आई। दरअसल जिन फौजियों को दफनाया गया था उनकी लाशें निकालने के बाद किसी ने उनके छोटे छोटे पीस करके पेड़ों पर लटका दिए थे। ये देखकर एक फौजी बहुत डर जाता है और कहता है कि बस अब मैं ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकता। इतना कहने के बाद वो खुद को गोली मार लेता है और ठीक उसी वक्त रोबर्टो को जंगल की तरफ एक औरत नजर आती है। उसको देखने के बाद सभी सोल्जर्स उसकी तरफ फायरिंग करने लगते हैं। कुछ देर बाद वो अचानक से गायब हो जाती है। दरअसल वो और कोई नहीं बल्कि ओलिना थी, लेकिन वो खुद को बचा नहीं पाई। बहुत सारी गोलियां लगने की वजह से वो काफी जख्मी हो गई थी। उसकी दोस्त ओलिना की मदद करते हुए उसके जिस्म से सारी गोलियों को बाहर निकालती। सोल्जर्स को जंगल में उस जगह खून नजर आता है जो देखने के बाद वो लोग समझ जाते हैं कि वो जो कोई भी था वो अब जख्मी हो चुका है। खून का पीछा करते करते ये लोग ओलिना की दोस्त के घर के पास आ जाते। दो सोल्जर्स अंदर चले गए जबकि दो सोल्जर्स बाहर ही खड़े हुए। अब ओलिना बाहर वाले दोनों पर भी जादू करती है जिससे दोनों आपस में लड़ने लगते हैं और बात इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि एक दूसरे को जान से मारने पर उतर आते हैं। मौका मिलते ही एक सोल्जर दूसरे को गन से शॉट करके उसकी जान ले लेता है। जो दो फौजी अंदर गए थे उनमें से एक रोबर्टो था। अंदर आने के बाद जब ये दोनों खुद को शीशे में देखते हैं तो इनकी हालत बहुत खराब लग रही है। एक सोल्जर का चेहरा तो पूरी तरह से जल चुका था। रोबर्टो उससे डरता है जिस वजह से वो उसे जान से मार देता है। ऐसा करने के बाद वो छुप गया और जब ओलिना आती है तो वो पीछे से उसके ऊपर हमला कर देता है। फिर वो ओलिना को नीचे गिराता है और उसके साथ गलत करने लगा, लेकिन वो ओलिना नहीं थी बल्कि वो तो उसका फौजी साथी था जिस बेचारे के साथ ही उसने ये सब कर दिया। और अब ओलिना भी सच में यहाँ आ जाती है। रोबर्टो पर हमला करने के बाद वो दूसरे फौजी पर भी हमला करके उसकी जान ले ली। इसी वक्त यहाँ पर उसकी दोस्त आकर जानकारी देती है कि मैंने चेक किया था, तुम माँ बनने वाली हो, इसी वजह से गोली लगने के बाद भी तुम ठीक हो गई, तुम्हें अपने बच्चे को बचाना होगा। तभी रोबर्टो पीछे से उसकी दोस्त पर हमला करके उसे पकड़ लेता है और उस पर गन तान देता है, जिससे ओलिना का अब इतना दिमाग खराब हो गया कि इस बार वो उस पर इतना खतरनाक हमला करती है कि उसे जान से मार डालती। अब ये जानकर कि वो माँ बनने वाली है वो काफी खुश होती और अब वो एक नई जिंदगी की शुरुआत करना चाहती। इसी वजह से वो यहाँ से कहीं दूर चली जाती है और अपने बच्चे को पैदा करती है और अपने आगे की जिंदगी अपने बच्चे के साथ हंसी खुशी गुजारती है। और एक बार फिर वो विच और जादू वाला काम छोड़ चुकी थी। अपने बच्चे की खातिर इस काम को फिर से ना करने का खुद से वादा भी करती है। और इसी के साथ ये फिल्म इधर ही खत्म हो जाती है।